our top focus at this hour, a clash broke out between two groups in Siddharth Nagar area of Kolhapur on Friday evening. Now, the clashes turned violent as heavy stone pelting led to injury of several people. Many vehicles parked in the area were also damaged during the violent clashes. Now, viewers, this incident led to growing tension in the surrounding areas as well. In fact, after the information was received, police force reached the spot to take stock and control the situation. Senior officers were also present at the spot. Now, viewers, the real reason behind the stone pelting is not clear as of now. The police have registered a case and also they've started their investigation into the incident. Now, in fact, people who created ruckus are being identified through CCTV, and as per the statements of eyewitnesses here, the police is preparing to take action against those who created the ruckus. Meanwhile, police said the situation in Siddharth Nagar area has returned to normal and the situation there is currently peaceful. In fact, police have also appealed to the citizens not to believe in rumours. This is the latest we're getting in on the clashes that broke out in Siddharth Nagar area. We are given to understand that as of now the situation is peaceful. The police have taken the control of the situation, and right now the probe is underway to identify that who were these people who caused the ruckus at the spot. Now, police is going through the CCTV footage from this area to identify that who all were involved in these clashes. Remember, several people have been injured after the stone pelting took place. In fact, many vehicles that were parked in the area, they've also been damaged due to these violent clashes. Now, as of now, we do not know what essentially triggered these clashes at the spot. But of course, the probe is underway. The police, they've been trying to identify who all were involved and what was the motive behind the situation turning and escalating into this scale, in fact. आज सीपीआर हॉस्पिटल के पास में दो समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। सबको यही आह्वान करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो मैसेज हैं या कुछ भी अफवाह का है उसमें विश्वास न रखें। दोनों समाज अभी शांत हैं। दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि जो भी हुआ है वो गैर समझ से हुआ है और सब समाज को आह्वान है कि कृपया करके शांति बनाए रखें। Now, my colleague Jaiprakash Singh is joining me on this story. जयप्रकाश जी, हमें बताएं आपको क्या और जानकारी मिल पाई है ये जो वायलेंट क्लैशेस हुए हैं कोल्हापुर में? देखिए सुचिता, इस पूरे मामले में दो गुटों में झड़प हुई थी। 4 पुलिस वाले इसमें इंजर्ड हुए हैं और टोटल अगर हम फिगर आउट करें तो 10 लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं। दोनों गुट की तरफ से पत्थरबाजी चली और दोनों गुट की तरफ से आगजनी भी कराई गई, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स वहां पर मौके पे पहुंचा। दंगा जो निरोधक पथक है वो वहां पर पहुंचा और उसने स्थिति को कंट्रोल में लिया। जो भीड़ थी, उपद्रवी थे, उनको वहां से हटाया गया। अभी फिलहाल अगर मैं बताऊं आपको तो सिद्धार्थ नगर में स्थिति एकदम सामान्य है। पुलिस सिद्धार्थ नगर के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जो राजे बागेश्वर फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ थी, यानी कि एनिवर्सरी थी, वहां पर भी जो स्टेज बनाया गया था जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वहां पर भी पुलिस लगाई गई है और चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी के जरिए। जो वहां के आई विटनेस है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनके बयान लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने इस जो माहौल को तनावपूर्ण बनाने का काम किया था उनको ढूंढा जाए, उनको हिरासत में लिया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। सो हमें अभी तक ये समझ आ रहा है कि स्थिति इस समय कंट्रोल में आ गई है, अभी पीसफुल एटमॉस्फेयर है ऑन द ग्राउंड। बट हमें ये बताएं इसेंशली क्या वजह थी कि ये क्लैशेस ऐसे इस तरह एस्केलेट हो गए? देखिए, जो जानकारी प्राथमिक रूप से मिल रही है वो ये है कि राजे बागस्वार फुटबॉल क्लब नाम का एक क्लब है वहां पर लोकल कोल्हापुर सिद्धार्थ नगर का। उसकी एनिवर्सरी थी, वर्षगांठ थी और सिद्धार्थ नगर के जो उसका चौराहा होता है, कमान होता है, वहां पर एक मंच बनाया गया था और इस मंच को हटाने के लिए, यानी कि जो स्टेज बनाया गया था उसको हटाने के लिए पहले जो है तनाव शुरू हुआ, आपस में क्लैश शुरू हुए और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और गाड़ियों की तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। तो छोटा सा मामला था लेकिन इसको एकदम बड़ा इसने रूप ले लिया
और इसी वजह से पुलिस भी इस मामले में वहां पर अभी भी आज भी पुलिस डिप्लॉयड है। हालांकि कोई कर्फ्यू या कोई इस तरह की चीजें अभी इम्पोज नहीं की गई है, लेकिन लोगों को कहा गया है कि जरूरत हो तभी घरों के बाहर निकलें और जो सीसीटीवीज हैं और जो आई विटनेसेस हैं उनके आधार पर जो उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा रही है और इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया, पुलिस ने इस मामले में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। उन्होंने अपील की है कि जो भी र्यूमर्स हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है स्प्रेड हो रही है, उस पर बिलीव ना करें। तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दें। कोल्हापुर के जो एसपी हैं योगेश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दो गुटों में ये संघर्ष हुआ था, गलतफहमी के कारण हुआ था, जिसके कारण जो दो गुट है वो आमने सामने आ गए। हालांकि जब स्थिति की जानकारी मिली तो दोनों अलग हो गए। अभी दोनों गुट शांत हैं और स्थिति कंट्रोल में है। लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की सोशल मीडिया की जो अफवाह है, सोशल मीडिया के जो वीडियोज हैं, मीम्स हैं या एक्सपोस्ट है, उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान न दें, क्योंकि वो प्रोवोक कर सकते हैं और उस पर ध्यान देने के बाद माहौल फिर बिगड़ सकता है। क्योंकि माहौल पूरा शांत है, इसको और बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उस पर और अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने और आगे की कार्रवाई करने के प्रोसेस में लग गई है।